आरंभ किया जाए श्री कल्याण बैनर्जी जी से। What we have seen that just by night only, the advocates has been changed. You were the first one who mentioned the matter, and the vacation bench also. You waited for the whole day, and now the advocates has been changed. Why? You see, this is a criminal revision. Earlier, I did it cybercrime matter. Last Friday, the matter came up from before the vacation day. Matter was not taken up. It was 221. That time, at the last moment, I mentioned the matter. After mentioning the matter, the honorable judges said that the matter will come up on witness. Now, in the meantime, Tuesday, there was a search was conducted. Search had been taken place. Even and also the ex-chief minister's office has been taken. Yesterday I mentioned the matter. Immediate urgency is there. Immediate urgency is there. And the state narrated the entire fact. Court said that the all right matter will be taken up tomorrow. Around 12:30, one lawyer came and said that regarding search and seizure, another litigation has been filed. How can you file it? Why did you not consult me? Why did you not consult me? When I am looking after the matter? Oh no, this matter has been filed, Mr. Kishore Datta will argue. I am letting her go. I don't mind. Then all matters should be handled by one person. To take the matter, I will not appear. I am not interested to appear. Tell me what should be done, and I should not be treated as a dastard. ओके, तो इसमें कुछ लोग लिख रहे हैं ऑडियो ठीक नहीं, वो ऑडियो सोर्स का ही ख़राब है, हमारा ऑडियो सही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कल्याण बैनर्जी जो है, अभिषेक बैनर्जी का जो मैटर था जिसमें उन्होंने फॉर्स सिग्नेचर जो है वो ले करके और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था कि हमारे पास इतने लोगों का सपोर्ट है और फलाना आदमी जो है चीफ व्हिप बनेगा, फलाना आदमी पार्टी का जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा बंगाल चुनाव के बाद। उस केस में वकील जो थे कल्याण बैनर्जी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब वहाँ पे इनको बताए बिना इनके पुत्र जो हैं उनको समाचार दिया गया कि भाई आपको हटा दिया गया इस केस से। अब कोई व्यक्ति जो एक तो पार्टी का व्यक्ति है, इतना सीनियर लीडर है, और उसके बाद तुम्हारे लिए ऐसे समय में जब तुम्हारी 2/3 पार्टी जो कहीं और जाने का देख रही है, ऐसे में तुम्हारे साथ खड़ा है और उसको बिना बताए यदि इस तरह से जो है बकलोली उसके साथ होगा तो फिर वो क्या करेगा। तो आज जो है कल्याण बैनर्जी मतलब खुल करके उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला है। आप बोला कि हमको बता देते भाई, हम 10 जून को पूरे दिन तक, 10 या 9 जून को पूरे दिन तक बैठा रहा कोर्ट में कि अब मेंशन होगा, अब आएगा। उनका नंबर नहीं आया, अगले दिन का डेट दे दिया गया और फिर अब जो है पता चल रहा है कि उनको हटा ही दिया गया है। कोई भी नाराज तो हो ही जाएगा। Whole day nothing has been informed to me. I got myself prepared in the night yesterday. Around 12:30, sent the message to my son that no, Kullan Manager is not required. One Bhattacharya will argue. Very good. This is respect to a senior lawyer. These people have worked with me as junior. Either Kishore Datta or One Bhattacharya or Sukushati Banerjee. It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. Is this a trust issue? Huh? Are you seeing this a trust issue? Of course. Abhishek's nature, how he is just changed. And Why I have said that. Whatever I have to say, I have said. will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek
or keep myself. If he again comes to you to No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. ये लग रहा है इनके आत्मसम्मान को जो है वो चोट पहुंची है थोड़ी सी, और पहुंचना भी चाहिए। जिस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, पहुंची है चोट। मेन इनका इशू जो है अभिषेक बैनर्जी से है कि भाई वो अपने आप को राजा समझता है, और जब जीते तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई राजा है, राजा टाइप बिहेव कर रहा है, लेकिन हारा हुआ जब खराब दिन चल रहा है, ऐसे में भी वो स्वयं को जो है राजा की ही तरह का जो है ट्रीटमेंट देना चाहता है। तो वो जो है ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे लिए ये चीज़ समस्या कारक है, मैं जो है इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जो है इससे कोफ्त होती है। और ममता बनर्जी को ये डिसाइड करना होगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा एग्जिस्टेंस तो इम्पॉसिबल है, मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, लेकिन अभिषेक बैनर्जी को लेकर के अगर वो साथ करेंगे तो ये उनके ऊपर है कि उनको वो रखना चाहती हैं कि नहीं। अब पता नहीं, इसके बाद एक फ़ोन आएगा ममता जी का, और हो सकता है कल्याण जी जो है वो आनंद में आ जाए और बोले कि नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा मुंह ते निकर गई टाइप का हो जाए। बट मुझे लगता है कि इनका भी मन लग रहा है उधर की, सायोनी उधर जा ही रही है और महुआ भी अभी सिसली में है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे क्राइसिस के समय में सोचिए कि महुआ मोइत्रा जो है यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है भगवान जाने। इसी तरह का एक क्राइसिस हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, तो एक नेता थे बहुत बड़े, वो भी भारत में नहीं थे, वो भी कहीं और चले गए थे, उनकी आँख का ऑपरेशन जो है वो होना था, और हाल ही में वो मोदी जी के लिए जो है ज्योति प्रज्वलित कर रहे थे और पूजा वूजा कर रहे थे। तो क्या पता कि महुआ जी एक वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुकी हों, क्योंकि सायोनी घोष जी का तो लाल साड़ी में जावा फूल के रंग का है, बढ़िया सा बना के उन्होंने फेथ और ये सब तो किया ही था। तो अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। सायोनी घोष जी से याद आया कि सायोनी जी आजकल देखिए, दीदी दीदी ये नहीं दीदी, अरे दीदी ये ना, मतलब दीदी इतना मास्क वास्क लगा के बेचारी जा रही हैं, टोपी लगा लिया, काला चश्मा लगा लिया, फिर भी तुम लोग जो है दीदी को पहचान ले रहे हो, कितनी गलत बात है यार, है एएनआई वालों। दीदी फोन वोन आ नहीं रहा होगा, दीदी ऐसे ही कान में करे लगा लेती हूँ, लगेगा कि हाँ ठीक है। दीदी दीदी ये नहीं दीदी, तो हृदय मदीना जो है वो सायोनी जी जो है अब किसी के हाथ नहीं आ रही हैं और अपना चाहते फुदकते हुए जा रही हैं। अब देखिए, हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा का एक ट्वीट जो है कल ये आया, इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट wishing our friend and guide of society and nation, Honorable PM Narendra Modi, best wishes on completing 12 years in office, perhaps the longest tenure ever. Wish you a long, healthy and prosperous life ahead. जय हिंद। और इसमें पता नहीं कि उन्होंने यशवंत सिन्हा, ममता ऑफिशियल, अरविंद केजरीवाल, संजय आज़ाद और राजा मुराद को जो है, राजा मुराद को हैशटैग में टैग किया है, बट मोस्टली बाकियों को नाम लेकर के उन्होंने जो है वो टैग कर दिया है। तो पता नहीं ये खुद ही किया, इनको पता नहीं होगा, ये टेम्पलेट बना हुआ होगा इनका पहले से, तो संभावना वो है। अब इस ट्वीट का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आवश्यकता आन पड़ी शत्रुघ्न सिन्हा को कि उन्होंने जो है वो
प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी तक तो यार दुनिया भर की जितनी गालियां सब दी हैं आपने, अचानक से 12 वर्ष हुए तो आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये कैसे पॉसिबल है भाई? मतलब हमारे जैसे कट्टर समर्थक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये टुच्चा सा 2 कौड़ी का कोई रिकॉर्ड है। ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये आप हो और आगे 3 साल और रहोगे, तो ये कौन सा रिकॉर्ड हो गया? एक रास्ते में एक रिकॉर्ड टूट गया, इसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया। आप 3 बार जीते हो और आपका एफर्ट 2024 में ही लगा था। अभी का कोई मतलब नहीं इसको सेलिब्रेट करने का, और जिस लेवल का इसको बनाने की चेष्टा की गई उस लेवल का बना नहीं। ठीक है, ट्रंप से ट्वीट हो गया और पता नहीं मेलोनी से हो गया, आर्मेनिया का पीएम, क्रोएशिया वाला, और सब जो है बहुत बढ़िया बात। समझ में ये नहीं आता कि उसका मतलब क्या है, होता क्या है, उससे क्यों किया गया ये सब। ठीक है, हटाइए, बट विपक्ष के लोग, शत्रुघ्न सिन्हा, आपको तो उस कैंप में होना चाहिए था ना जिसमें नेहरू का फोटो इतना बड़ा दिखाया जाता है, मोदी जी का इतना छोटा। आप इस टाइप वाले थे, आपने ऐसा क्यों किया? ये मेरी समझ से जो है वो बाहर है। और इस पे कीर्ति आजाद जो है उन्होंने भी कुछ बोला था, लेकिन पहले हम शत्रुघ्न सिन्हा का एक सुनते हैं। प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि नहीं होगा, परंतु लिस्ट में इनका नाम भी अब डाल दिया गया था। अब थोड़ा सा इस तरह का जो लिस्ट बनाते हैं उन पे भी अब संदेह होने लगा है कि भाई किस तरह का टुच्चा लिस्ट बनाते हो जिसका कोई मतलब नहीं। आज लिस्ट में नाम डाल रहे हो और कल जो है पता ही नहीं चल रहा है। सयोनी घोष का तो लग रहा है कि है एक्चुअल में, क्योंकि वो तो जवाब देना नहीं चाह रही, भाग रही इधर उधर दाहिने बाएं। बट शत्रुघ्न सिन्हा तो वो बार बार बोल रहे हैं टीएमसी और ममता जी के साथ था, हूँ और रहूँगा। पता नहीं, मुझे विश्वास थोड़ा सा कम होता है ऐसे लोगों पे, लेकिन बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कीर्ति आजाद जी से थोड़ा सा ही डर गए हैं। कीर्ति आजाद बोल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस अमित शाह के तत्वावधान में पूर्णतः जो है वो चालू हो गया है। कई नाम जो है अलग अलग सूत्रों से घुमाए जा रहे हैं, ट्रिक काम नहीं कर रहा है। मैं भविष्य का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उनके पास 16 नाम तो नहीं है। पैसे ऑफर किए गए थे, भय भी दिखाया गया था, और अब बंगाल पुलिस जो है वो कई एमपीज के घरों के बाहर जो है वो पहरा दे रही है। तो अमित शाह जी थोड़ा और जो है आप प्रयास करें, और उधर का सिंदूर उधार का सिंदूर तुम्हारी मांग में उसका है, हु वाज कॉट ऑन कैमरा टेकिंग ए ब्राइब ऑफ 5 lakhs of rupees। अब इनको अचानक से कीर्ति आजाद जी को याद आया कि अरे काकोली दस्तीदार तो वो तो 5 लाख रुपया ले रही थी कैमरा पे। तो ये तो आपको पहले से पता था कीर्ति आजाद जी, ये तो आप 5 साल से एमपी हैं, टीएमसी में हैं आप, तो आपको तो पहले से पता होगा कि 5 लाख रुपया जो है स्टिंग ऑपरेशन में लेते हुए पकड़ी गए। तो क्यों नहीं आपने तब इस पर क्यों नहीं कोई बात जो उठा? उस वक्त तो डिफेंड कर रहे होंगे ना किसी और काम को लेकर के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फंसाया गया इस टाइप से। अचानक से अभी काहे लग रहा है कि फंसाया नहीं गया है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। सुनिए। TMC MP Kirti Azad, and he's part of the Mamta camp, has made a big claim. He says 3 out of the 19 MPs in the rebel camp want to take back their signature. He says he is in touch with them. Let's first listen into that explosive claim.
Some of the names, like Mr. Shatrughan Sinha as well as Pratima Mandal, their name have come up in the list, but today they have come out and in open, and they have said that we are with Didi, we are with Trinamool Congress, and we have not signed any papers. Obviously, they haven't signed. And I tell you, the Dirty Tricks Department and the Operation Lotus, which is obviously chaired, monitored by the Udhar ka Sindoor, Amit Shah, he is failing in his work. Maybe he may be successful, but so far all 28 are intact. Nobody is gone. 3 of them want to take their signatures back. They are realizing what they have done. I am talking to them. I am in touch with them. तो अब लग रहा है कि ट्रबल शूटर जो हैं वो कीर्ति आज़ाद हैं, जो एक्चुअल में टीएमसी के उस तरह के मेंबर भी नहीं, ये तो पार्टी हॉपर हैं। बट अच्छा लगा कि कोई आदमी जिसको बुरे समय में, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसको ममता दीदी ने पूछा। हालांकि क्यों पूछा, उसके पीछे कीर्ति आज़ाद जी बहुत धनवान व्यक्ति है। यदि आप बिहार के, मिथिला के, आपको पता चल जाए, बहुत धनवान है। इनकी पत्नी का बिजनेस है, इनका अपना भी है, तो आदमी बढ़िया है, मतलब पैसे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि आपके पास पैसा है इस कारण जो है कोई पार्टी आपको टिकट देते नहीं। आप टैलेंटेड होते हैं, समाज सेवा का आपका पूरा एक इतिहास रहा होगा, और आप जिस भी पार्टी में गए होंगे उस पार्टी को आपने जो है इतना काम करके दिया होगा समाज सेवा में, आप बहुत आगे गए। तो अभी जो है कीर्ति आज़ाद जी पूरा एकदम नहीं हम जो है, क्योंकि बात अंततः यह है कि कीर्ति आज़ाद जैसों का भविष्य जो है वो खत्म है। इन्होंने इतना वमन कर रखा है भाजपा के अगेंस्ट कि अब भाजपा में तो आएंगे नहीं, तो ये जाएंगे कहाँ। लेकिन क्या अजीत जी आप श्योर हैं कि भाजपा में नहीं आएंगे? नहीं भाई, मैं श्योर तो नहीं हूँ। भाजपा में तो सीडी लेकर घूमने वाले लोग भी आ गए हैं, उनको भी मंत्री बना दिया जाता है। तो भाजपा में तो किसी को भी, मतलब दिलीप मंडल को ले लिया जाता है एडवाइजर के रूप में। तो भाई भाजपा में तो कोई भी कुछ भी करके आ जाए, उसके लिए सदैव भी, मतलब भाजपा जीसस क्राइस्ट हो गया है, समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम्हारे पाप कर्मों का कोई उसमें जो है भुगतान नहीं करना है तुम्हें। और चर्च के बारे में मतलब लिखा जाता था, बहुत पहले की बात है, हम लोग अंग्रेजी साहित्य में पढ़ा करते थे कि दान पात्र में सिक्कों की खनखनाहट जितनी तीव्र होगी, तुम्हारे उतने पाप जो है वो कट जाएंगे। तो यही, अब पता नहीं भाजपा में ऐसा कुछ है, सब दान क्या ही लेगी भाजपा, पैसे क्या कमी है। बट है, अब हो सकता है कीर्ति आज़ाद जी का भी कुछ नंबर लग जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है, मूड नहीं है इनका मूड है कि नहीं टीएमसी ने हमें जो है वो दिया है, तो ही इज़ इन टच, और बोल रहे हैं कि नंबर्स उनके पास नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी 1 आध सप्ताह ये खेल अभी चलेगा, स्पष्टता जो अभी आई नहीं है। मोटा भाई अभी 2 दिन तो उनका उसमें चला गया, थोड़ा सा भारत मंडपम में और मोदी जी के सम्मान में 12 साल वाला में। अभी मोटा भाई जो है वो निकलेंगे पेचकस लेकर के, अपना वो जो स्कूटर पे निकलते हैं। फिर देखिएगा, अभी हो जाएगा, डिलिमिटेशन बिल पास करवा लेगी भाजपा निस्संदेह।